Right. 21 people. चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to talk about the background and structure of 1973 Constitution. Background to 1973 Constitution and structure of 1973 Constitution. ये आज today हम midterm course के बाद का first topic आज cover करने जा रहे हैं. तो कि I believe कि इसके ऊपर अब्दुल बासित की एक बुक है जिसको आपकी जो फॉर्मर टीचर हैं वो भी इस्तेमाल करती थी, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं उसी बुक को लेके चलूँगा अगर आप लोगों के पास हो तो. अदरवाइज फिर देखेंगे अदरवाइज क्या करना है. तो बैकग्राउंड पहले पे बात करते हैं. आपको पता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज suspended in 1969 and new martial law was imposed in our country. When new martial law was imposed, Yahya Khan introduced legal framework order, and under the legal framework order he announced first ever general election in Pakistan. Maulana Maududi Rahmatullah Alayh was having the idea that if whatever the new first ever general elections they are being announced by the dictator of Pakistan, if in this election regional political parties they are going to get victory, then no power in this world can stop Pakistan from disintegration. And his prophecy proved correct. The first ever general election which held in Pakistan in 1971, the result was very drastic to national integration. The very first thing was that in East Pakistan, Awami League won landslide victory. And Awami League was having victory on the basis of 6 points, 6-point agenda. And here in this part of Pakistan that was known as West Pakistan, here Pakistan People's Party, a socialist party, won the election. And in KPK and Balochistan, hybrid governments were there. In NWFP, Awami National Party, and in Balochistan, the coalition government of Mufti Mahmood, the father of Fazlur Rahman. So according to the prophecy, regional political parties, they got victory in their own area of influence. And now, under the legal framework order, a condition was imposed that after the announcement, within a specific time frame, the session of the assembly would be called. And if the government remains unable to call that session, then what would be happening under the condition of legal framework order, the whole country would be going again for general elections. So this was basically a legal restriction being imposed to call the session of parliament in order to go for the transfer of power. Anyway, since Awami League won the election on the basis of 6-point agenda, so here on this part of Pakistan, in the western Pakistan, two political entities, they were very powerful. One was the Pakistan People's Party under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, and the other political entity, which was not as such political entity, which was basically, but that political entity was known as the most important political stakeholder in Pakistan, that was military under the leadership of Yahya Khan. So both these political entities, they were having their reservations. They were having their reservation that since Awami League has won the election on the basis of what you call it 6-point, so Awami League in one way or the other is not willing to reconcile their demands within the domain of federation. So they are going for a
loose confederation, or they are going for the separation from Pakistan. If we have a careful analysis of the 6 points of Sheikh Mujibur Rahman, then we might come on the conclusion that the basic essence of those 6 points was revolving around the loose confederation, and both of these political entities in the west part of Pakistan, they were having their severe reservation because they were of the opinion that federation must not be effected in our country. And since India is at the back of Awami League, so Awami League जो है, Awami League would ultimately, after creating loose confederation, they would be announcing जुबैर कह रहा है कि कोई इसको लेक्चर को नोट करे, I won't be able to note it today. अच्छा, so कहाँ थे हम, किस थे कि ultimately Sheikh Mujibur Rahman would be going for the declaration of independence and India would be supporting it. So these were the severe reservation. Lekin as per the result of the general election, the first and the foremost thing that was important for the existing political elites to go for the reconciliation with each other. Zulfikar Ali Bhutto came up with the idea of the second majority political party, and Zulfikar Ali Bhutto wanted to have more and more share in the new political setup of Pakistan. And the military under the leadership of Yahya Khan, more specifically if we talk about Yahya Khan, not the whole military as an institution, Yahya Khan wanted to have some political slot being reserved, and more specifically the slot of presidency in new political setup of Pakistan. So conflict of interest was all aware. Sheikh Mujibur Rahman under the election process wanted to become the Prime Minister of Pakistan, but he was of opinion that since we have won the election on the basis of 6-point agenda, so there is no room for reconciliation with the military establishment and political elite of West Pakistan. And so a stalemate situation arose. And then within the due date, on the pressure of the Zulfikar Ali Bhutto, when the session of the parliament was not being called in, this thing created political agitation in the East Pakistan. And Sheikh Mujibur Rahman came up with the idea, since the people have elected me and they have given us the landslide victory, 99% vote we have taken from 99.9% vote from the East Pakistan. So our right of becoming the Prime Minister is not being acknowledged. So Western establishment, Western Pakistan establishment is not willing to reconcile. So they went for the agitation. A moment of civil disobedience was started on the call of Sheikh Mujibur Rahman. Here Zulfikar Ali Bhutto was not reconciling. Over there, Sheikh Mujibur Rahman was not reconciling. So this whole situation created a dilemma. So in order to stop the movement of civil disobedience, army was sent for military operation. And during the military operation, India started, and this is how you know the rest is the story, how the situation was being manipulated by international actors. They got their vested interest in the bifurcation of Pakistan. India was at its back. India was having very effective foreign policy and diplomacy. So this is how Pakistan was disintegrated. So when Pakistan was disintegrated, on the basis of the election of 1971, जो elections हुए थे, the session of the parliament was called in West Pakistan. It is a matter of almost April 1972 के दरमियान में ये बात हुई. The session of the parliament was called in, and all political parties and all people who won the election of 1971, जो 1971 के अंदर जो election हुए थे 71 में, they were called for the oath, and they were being considered as the member of new parliament. उनको member of new parliament consider किया गया. नए elections called नहीं हुए थे. Meanwhile, after the disintegration of Pakistan, Yahya Khan, who was
under the legal framework order and the new martial of 1969 के तहत he was the president. He resigned from his post, and Zulfikar Ali Bhutto was already being made as the first civilian chief martial administrator and the president of Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto, being the president of Pakistan, called the session of parliament, and all those people who won the election in the previous elections, they were being considered as the member of legislative assembly. That legislative assembly was supposed to act the role of a constituent assembly. Constituent assembly का किरदार अदा करना. Anyway, the session was called, a committee was being made under the 24-member committee was being made under the leadership of Muhammad Ali Kasuri. Muhammad Ali Kasuri की leadership में constituent committee बनाई गई थी that was given the responsibility to draft the basic framework to draft the constitution of 1970 या upcoming constitution. अच्छा, यहाँ पे एक चीज is very important. People, they were having the idea कि this constituent assembly was basically having the idea that they will not be coming up with the full-fledged constitution. तो full-fledged constitution के साथ नहीं आएंगे. They were basically trying to reform the constitution of 1956. लेकिन somehow during the deliberation, when the consensus was coming up, the people decided to go that there were different anomalies within 1956 constitution. For instance, legislature was not bicameral, so new constitution would be constitution would be coming up with the bicameral legislature, and there are many other anomalies. So they were of the opinion that instead of reforming the 1956 constitution, we should go for the full-fledged new constitution. So meanwhile, they realized the fact that later on they started making progress over it. So constituent committee that was being made under the leadership of Muhammad Ali Kasuri was having 24 members, and this committee worked for almost 8 months. This committee ने 8 माह काम किया. And then meanwhile what happened? Muhammad Ali Kasuri resigned from the seat of chairmanship of this constituent committee, और वो जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैजिशियन जिसको कहा जाता था अब्दुल हफीज पीरजादा was being made the new chairman of this constituent assembly. अच्छा, याद रखिएगा ये मोहम्मद अली कसूरी वही बंदा था जिसके कत्ल के इल्जाम में लियाकत अली खान, ये जो आपका जुल्फकार अली भुट्टो was hanged, जिसको हैंग किया गया था. तो इसने on some difference with the Zulfikar Ali Bhutto and the deliberation of the Constituent Assembly, उसने उसको resign कर दिया था. याद रखिएगा the Constituent Assembly, ये जो session of the Assembly called हुआ था, there were total 146 members. उसके total 146 members थे. And when Constituent Assembly, जो Constituent Committee, उसने after the deliberation of 8 months prepared a draft of 1973 Constitution. उसको जो पेश किया गया नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल 1973, जब उसको बनाया गया तो एट दैट टाइम 125 मेंबर्स दे वोटेड इन फेवर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और एट दैट टाइम आउट ऑफ 146 पीपल 125 पीपल दे वोटेड इन फेवर ऑफ the constitutional draft. And but the session that was being called at that time, जो बुलाया गया था, at that time total 128 members were present, and out of 128 members 125 people they voted in favor of the constitution. Somehow after the ratification, the 1973 constitution जो था ये 14 अगस्त 1973 को promulgate कर दिया गया, became effective in the whole country. अब यहाँ पे Pakistan People's Party used to claim that 1973 constitution was unanimously approved constitution. लेकिन the matter of fact is there were total, the constituent assembly जो थी was composed of 146 members, and out of 146 members 128 people were present when the draft was presented in the session, and out of 128 members
125 people they voted. So it means that there were a lot of people who were the non-signatory or they were not willing to have their signature over the constitution. अच्छा याद रखिएगा, when the constituent committee was being made, 5 political parties of West Pakistan, जिसमें जमात इस्लामी भी थे, ANP भी थे और दूसरे लोग भी थे, they were not willing to attend this session of the assembly. They were of the opinion that a single political party which was having majority from the 2 provinces, जो 2 provinces से majority रखती है, that was ultimately the Pakistan People's Party, that dominating जो people party है, जो winning party है, is going to impose its own agenda over the whole country. So we are not going to reconcile with the demands of political Pakistan People's Party. लेकिन when Zulfikar Ali Bhutto decided to take this task in his own hands, he personally met the opposition leader, he personally met the leaders of the political parties, and he reconciled them. He took their reservation, he noted their reservation, and all those reservations, they were being rectified, they were being accommodated in the final draft of 1973. And after the boycott of 16 days or so, 16 days के बाद, these leaders and political parties, they decided to be a part of the Constituent Assembly and the Constitutional Committee. ये बनाया गया. यहाँ तक ये मेरी बातें समझ आई हैं आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बातें हुई हैं, जो बैकग्राउंड क्या था और हुआ क्या और कितने लोगों ने इसको फेवर किया. अच्छा जी कोई yes, sir. जी अब इसके अंदर अब सेशन था 146 लोगों का और when the bill was tabled at that time 128 people were present and out of 128 people only 125 people voted in favor of the constitution. तो ये बेसिकली अच्छा खैर जो कुछ भी है तो इसका मतलब है 146 से 100 कोई 18 लोग ऐसे थे those who were not willing to sign or to be present on the day when the bill was to be passed. तो कुछ important names हैं जो बड़े अहम थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किया. The very first person who was not willing to be part of this constitution making process was Mian Muhammad Ali Kasuri. ये वही बंदा है who refused to be, जो पहले became the chairman of the constituent committee का बन गया था लेकिन he was not later on willing to sign. दूसरा बंदा था डॉक्टर अब्दुल हई बलोच. ये आप लोगों को पता है बलोचिस्तान का बहुत बड़ा बंदा है डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, नेशनलिस्ट है बहुत बड़ा, इसने भी सिग्नेचर नहीं किए थे. और एक और बंदा था अब्दुल खालिक खान नेशनल अवामी पार्टी का, और उसके बाद एक और हाजी अली अहमद खान थे, ये भी उधर ही से थे, मेंबर थे, नहीं किए. और लेकिन सरप्राइजिंगली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जुल्फिकार अली भुट्टो की ने जब ये बिल पास करवाया, अब्दुल वली खान, जानते हैं आप लोग अब्दुल वली खान कौन था, उसने कहा था कि वी एक्सेप्ट द होल कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एंटायरिटी. ये पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तमाम दर्जात है, वी गॉट नो ऑब्जेक्शन, वी आर गोइंग टू रिकंसाइल विद इट. लेकिन कुछ नेशनलिस्ट दे वर नॉट विलिंग टू रिकंसाइल विद इवन द पार्टी लाइन, उन्होंने पार्टी लाइन से भी डेविएट किया था. तो ये जो लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं दे वर नॉट विलिंग, वो नहीं विलिंग थे इसके ऊपर पढ़ने के लिए, लेकिन somehow out of 146 125 people. अच्छा ग्रुप के अंदर आई हैव शेयर्ड अ लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, इसके ऊपर पूरा एक्सरे है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड ओवर इट. और वो आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि वो बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, छोटे छोटे हाफ पेज के ऊपर लिखा हुआ है, और सेनेट ने 2016 में इसको पब्लिश करवाया था when they were commemorating the anniversary of the constitution making in Pakistan. So I would be suggesting you कि all of you should go and review the whole document, इसको पढ़ना चाहिए. अच्छा खैर अब आते हैं 1973 constitution के structure पर. This was the whole background in which the constitution was being made. अच्छा there are 280 articles. पाकिस्तान के 200 पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स है. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड विद इन दी 25 years ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, इट मींस लाइफ, यानी कि 25 years के अंदर वी गॉट अवर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड विद द टायरलेस एफर्ट ऑफ 9 years,
but it was not allowed to work more than 2.5 years. And then the next constitution in 1962, which was came and then abrogated in 1969 after almost 7 years, and then the third constitution in a row. Within the 25 years of lifespan, Pakistan got its third constitution. But third constitution was basically a compromise between the secular and religious political parties. Secular and religious political parties के दरमियान ये compromise था. And when we talk about the structure of 1973 constitution, उसकी जब हम बात करते हैं, there are total. अच्छा, ये जो चीजें जो मैंने अभी आपको enumerate करनी है, I would be suggesting you, rather I would be making you people to have them on your fingertips. American Constitution जो पढ़ा हमने, we have just talked about the important feature of Constitution. We have not gone through the context and the text of the Constitution. But when we people would be talking about 1973 Constitution, I would be making you people to go through the important text of 1973 Constitution. ये बहुत important. तो उसके लिए first of all we have to have what? The better understanding of the structure of 1973 Constitution. अच्छा, total up to now people believe that total 30 means 30 amendments they were being proposed in 1973 Constitution, and out of these 30 amendments, 25 amendments they are in working position. 25 amendments they are in working position, and rest of the amendments they were either being passed by the lower house or being passed by the upper house, but they were not being passed unanimously by the upper house and lower house, so they were being rejected or they were being withdrawn, but the draft were being presented and they got the consent of the lower house either or the upper house, but the constitutional jo requirement was not being fulfilled. That's why they were not being incorporated in 1973 Constitution. So total 30 proposed amendments they were being proposed in 1973 Constitution, and out of 30, 25 they are in operational condition. वो operational हालत में हैं. अब आते हैं structure के ऊपर. The very first thing जो है पाकिस्तान का Constitution is having total 12 parts हैं इसके, and every part is having its own chapters. So there are total 12 parts of 1973 Constitution, excluding the preamble. Preamble को निकाल कर 12 parts, and there were total 7 schedules. And after 18th Amendment, 2 schedules related to the powers of President they were being excluded. Now in our Constitution there are 280 articles, 12 parts, 5 schedules. ये चीज आप लोगों ने समझना है. अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज के ऊपर कि ये डिस्कस करना है. जो पार्ट 1 है, मैं एज आई टोल्ड यू देयर आर टोटल 12 पार्ट्स. पार्ट 1 जो है, इट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान. इट इज हैविंग 1 to 6 आर्टिकल्स. आर्टिकल जो 6 है वो भी पार्ट 1 के अंदर है, और इसके टोटल देयर आर इन पार्ट 1 देयर आर टोटल फर्स्ट 6 आर्टिकल्स, एंड पार्ट 2 इज हैविंग article from 7 to 40. There are total 7 to 40 articles in part 2, but part 2 is further divided into 2 chapters, and each chapter is having its own articles. बच्चों, ये चीजें हमने याद करनी है, चाहे इसको ऑब्जेक्टिव समझें, चाहे इसको आप जो मर्जी समझें, इसको हमने याद करना है हर सूरत, हर कीमत पे. 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, और उसका एक प्रीएम्बल है. There are total 12 parts, 7 schedules, 2 are being omitted. Now there are total 5 schedules. Preamble starting from the objective resolution. After that, part 1 is having total first 6 articles. Part 2 is having total 33 articles. और जो it is further divided into 2 chapters. The chapter 1 of part 2 है is starting from article 8 to 28. और जो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 है, इट इज कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 11 आर्टिकल्स जो 29 से 40 तक हैं. बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? ये बात मुश्किल लग रही है कि आसान लग रही है आप लोगों को?
क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। सुनने में लग रही है टफ, लेकिन लिख लेंगे तो फिर वो आ जाएगी समझ। हाँ, ये हर सूरत में स्ट्रक्चर हमने करना है। इसको ऑब्जेक्टिव समझें या सब्जेक्टिव समझें, जो मर्जी समझें आप इसको, बट इट हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स बाय एवरी क्राइटेरिया। इसको आप लोगों ने करना है जुबानी, और मुझे भी बहुत टाइम लगा इन चीजों को जहन में रखने के लिए, लेकिन स्टिल मुझे नोट्स बनाने पड़े हैं। तो लेकिन खैर मैं सोच रहा था पूरा वीक पढ़ूंगा इसको, फिर ऑब्जेक्टिव पूछा करूंगा आप लोगों से, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा चलो जी, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पार्ट 3। जो पार्ट 3 है, it is having articles total around 59 articles या 60 articles हैं इसके अंदर, that is related to the composition of the Federation of Pakistan and the power sharing of the Federation of Pakistan. इसके अंदर there are total 3 chapters. Part 3 is divided into 3 chapters. Part 2 is divided into 2 chapters. Part 3 is divided into 3 chapters. And every chapter is having its own range of articles. इसकी हर, and every article is divided into sections, classes, subclasses and annexures. ये याद रखिएगा. So chapter 1 of part 3 is starting from article 41 to 49. No articles हैं, and these articles are related to the functions and powers of president in parliamentary system. उसके बाद chapter 2 of part 3 is composed of articles from 50 to 89. ये तकरीबन बढ़ते हैं 9 articles, and these articles are related to the working of parliament. So chapter 2 of part 3 is related to the functions of parliament, and functions of parliament, they are discussed in article 50 to 89 तक. उसके बाद chapter 3 of part 3 is related to the working of federal government, and it is having 10 articles, यानी starting from 90 to 100. ये जो 90 से 100 जो articles हैं, ये 10 articles, they are related to the working of federal government, and these things are written in chapter 3 of part 3. बच्चों क्या लग रहा है आपको? इजी के मुश्किल? इजी सर। हाँ बस ठीक है, इसको याद करना है जबरदस्त. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पार्ट 4. पार्ट 4 जो है, जो पार्ट 4 है, दैट इज ऑल अबाउट प्रोविंसेस, एंड इट इज हैविंग 101 to 140 आर्टिकल्स, 101 से लेकर 140 आर्टिकल्स तक. एंड चैप्टर जो 4 है is further divided into 3 chapters. It is further divided into 3 chapters. याद रखिएगा. The first chapter जो है of part 4 is related to the power, function and responsibilities of governors. And article 101 to 105, 101 to 105, these 5 articles, they are related to the working, function and responsibilities of governor as the representative of the central government over provinces. उसके बाद chapter 2 of part 4, they are related to the provincial assemblies, legislative provincial assemblies, and इसके जो articles हैं, that are related to the 106 to 128 articles. 28 आर्टिकल्स तक हैं, 106 से 100. ये चैप्टर 2 के अंदर प्रोविंशियल असेंबली. और चैप्टर 3 इज रिलेटेड टू द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, आर्टिकल्स 129 टू 140. सो मैं अब जरा इसको सम अप अगर कर पाऊं, पार्ट 4 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग टोटल 40 आर्टिकल्स, एंड दीज 40 आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द provincial affairs, and there are further 3 chapters. Chapter 1 of article 4 is related to the working, functions and responsibilities of governors, and there are total 5 articles which are related to the working and functions of governors, and starting from 101 to 105. उसके बाद chapter 2
that are related to the legislative provincial assemblies, and there are total 106 to 128 articles. And then the responsibilities of the provincial governments, how the provincial affairs, they will be regulated by the provincial assemblies, and there are total 129 to 140 11 articles, and these 11 articles are related to the working of provincial governments, and all of these things are written in chapter 3 of chapter 3 of part 4. Okay guys, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जिसका हमने डिस्कस करना है, that is all about the part 4, the relationship between federation and provinces, यानी कि how the relationship between provinces and federal central government would be regulated under the article 1973, and there are almost 19 articles starting from 141 to 159, 141 से लेकर 159 18 19 आर्टिकल्स हैं, and there are only 3 chapters. ये याद रखना आप लोगों ने. Part 5 is further divided into 3 chapters, and these 3 chapters, they are related to the finance matters, legislative powers, वो जो आपने 56 में पढ़ा था, जो मैंने आपको administrative powers, special फाइनेंशियल पावर्स, ये पाकिस्तानी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट 5. अच्छा, ये पार्ट 5 जो मैं बता रहा था, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है इज कंपोज ऑफ 4 आर्टिकल्स, एंड दैट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मींस विच एरियाज वुड बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गो फॉर द लेजिस्लेशन. इसके अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. And there are only 4 articles which are dealing with it. Chapter 2, starting from 145 to 152, that are related to the administrative power. ये जिन्होंने पाकिस्तान स्टडी पढ़ी थी, they are having the better idea कि how central government used to have more leverage over the administration of the provincial governments. तो इसके अंदर आर्टिकल 145 to 152 articles, they are related to the administrative relations between the federation and provincial governments. और उसके बाद the last chapter of chapter 5, third chapter of part 5 is related to the special provisions. Special provisions का मतलब ये है कि how central government, if central government believes that the provincial government has remained unable to perform its function, then how the governor Raj could be imposed under the constitution, and how emergency could be imposed, how the central government would be controlling the basic affairs, law and order situation of any provinces. जैसा कि कराची ऑपरेशन के दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डायरेक्टली इंटरवीनिंग. सो दीज जो चैप्टर 3 है ऑफ पार्ट 5, they are related to the special provisions, articles starting from 152A से 159. These are 7 articles directly related to the special provisions, giving more power to the central government over the provincial affairs. बच्चों, ये बात समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? यस सर, आ रही है. क्या आ रही है? किधर फंस गए हैं? फौज, क्या समझ आया अभी तक? सर थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है, लेकिन आहिस्ता से जब लिखेंगे समझ आ जाएगी. यार पार्ट 5 की अभी आप बात कर रहे थे कि 3 इसमें चैप्टर हैं. हाँ, तो पहला जो है वो 141 से लेकर उसमें जो आर्टिकल हैं 145 तक हैं. दूसरा 145 से 152. रिलेशन बिटवीन जो चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं ना? जी जी, नहीं सर, पार्ट 5 चैप्टर 1. अच्छा, वो चैप्टर 1 की, हाँ जी, 141 से 144 तक. जबरदस्त, अच्छा बताया आपने. फिर दूसरा जो है 145 से 152 तक है. हाँ, ये दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. यस सर. और जो थर्ड है वो स्पेशल प्रोविजन का, जो 152 से 159 तक. हाँ, स्पेशल प्रोविजंस है. अच्छा, और कोई फीडबैक क्या है इसके ऊपर? टैमी, क्या कह रहे थे तुम? सर मैं यही कह रही थी कि ये समझना भी और समझने ज्यादा इसमें याद करने वाला काम है. दोनों चीजें. आप लोगों ने एक तो हायरार्की एस्टेब्लिश करनी है दिमाग में कि ये जो कि कैसे पावर डेलीगेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में,
और दूसरा फिर कौन कौन से आर्टिकल किस किस से रिलेटेड हैं। अच्छा, हम जो आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक हैं वो 300 350 400 पेजेस की हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर क्लास, सेक्शन, सब सेक्शन, एनेक्सेस को नहीं याद कर सकते कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को हम आर्टिकल वाइज याद कर सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर सूरत हर कीमत के, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। और ये हमने मिड टर्म तक हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर किए हैं, उनको पढ़ने की कोशिश की। वो अपने कंपैरेटिव में ऑलरेडी यू पीपल वर हैविंग योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पता नहीं कि यू पीपल आर हैविंग ऑलरेडी बेटर एक्विटेंस और नॉट, लेकिन इसको मैंने आपको बताया था कि आप अपने सारा कुछ अपने आप को बकल अप कर लें हर लिहाज से। यहाँ पे बड़ा रिस्क और टाइम कंज्यूम होना है आपका चीजों को रिमेम्बर करने में, उनको मेमोराइज करने में और उनको अंडरस्टैंड करने में। और उसके बाद एज आई हैव सजेस्टेड यू के यू पीपल शुड वर्क ऑन सम कंट्राडिक्शंस विद इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अनॉमलीज, पैराडॉक्सेस, एरर्स, कॉमेडीज वगैरह, इस तरह के चीजों के ऊपर काम करें। हाँ, जो काम करना चाहते हैं द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दी ब्रिटेन एंड दी यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस, वो भी ठीक है, लेकिन आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि यू शुड वर्क मोर ऑन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक आप लोगों ने जितने आर्टिकल्स मुझे तजवीज किए थे उनमें ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि प्लीज कम, पाकिस्तान में जैसे कि 12 चैप्टर्स हैं, इसके 12 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट के अंदर चैप्टर्स हैं, तो आप उस चैप्टर के जो चैप्टर्स उसमें अनॉमलीज फाइंड करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ कंट्राडिक्शंस, अनॉमलीज दे आर एग्जिस्टिंग विद इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसके अंदर फाइंड करें, उसके ऊपर वर्क करें कि वेदर इट इज वर्किंग। ये असल आपका काम होना है कि कोई बंदा ले ले प्रोविंसेस और सेंटर का वर्क ले ले, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टेंडेंसीज के ऊपर ले ले, कुछ गवर्नेंस के रोल्स के ऊपर ले ले कि ये किस तरीके से पॉलिटिकल डाइकॉटमी क्रिएट कर रही है। कहते तो है पार्लियामेंट्री और रिपब्लिकन सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर काम करें, और इसके ऊपर बड़ा टाइम है आपके पास, टाइम अगर आपको ज्यादा चाहिए होगा वो भी दे देंगे, लेकिन आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में पढ़ना चाहिए, और फिर ये सारी चीजें हमारी तैयार होनी, अदरवाइज नहीं होनी। इसके ऊपर मैं फीडबैक चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्या कहते हैं? सही है सर। सर ठीक है। मुबशर क्या कहते हो? बिल्कुल सर, मेरे क्वेश्चन तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही दिया था सर, इमरजेंसी क्लॉज के ऊपर। हाँ, इसको मजीद देखें, जैसे कि अब नाउ वी आर गोइंग वेरी नैरो टू दिस वेरी स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर यू विल बी फाइंडिंग फर्दर रूम फॉर योर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। किसी आर्टिकल का जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको अपने लफ्ज में लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो थे जो या तो सीएसएस के पेपर में आए हुए थे या उसके ऊपर आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल थे। उन्होंने उठाया उधर से टॉपिक और सीधा मुझे फेंक दिया। उसका मतलब क्या है? व्हाट दे आर एक्चुअली विलिंग टू डू, दे वुड बी गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ दैट आर्टिकल। तो फिर वो सिचुएशन तो रिजॉल्व ना हुई, तो फिर काम करने का क्या फायदा हुआ? ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप, तो बेसिकली सर कोई जी सर कोई आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर भी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये भी बहुत हुआ है सर, बहुत जबरदस्त। ये हाँ, के पेपर में आता है और ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी है। जबरदस्त। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसको इंटरप्रेट कैसे कोर्ट्स की तरफ से किया गया और किस तरीके से पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको यूज किया गया। ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है, लेकिन समहाउ आई वुड बी सजेस्टिंग यू के आप ये जो लार्जर स्ट्रक्चर्स हैं उसकी अनॉमलीज देंगे ताकि आपके पास डाटा भी हो और आप क्रिटिसाइज भी कर सकें। क्या ख्याल है आपका? जैसे सर आप कहें सर। आप करो बच्चे करो, कोई बात नहीं, लेकिन आई वुड बी सजेस्टिंग यू टू फोकस मोर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर करें ताकि आपकी चीजें तैयार हों। अब बता आगे चलते हैं जो पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 6 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स, उसके 3 चैप्टर्स हैं। और ये जो पार्ट 4 है इट इज कंपोज ऑफ टोटल 14 आर्टिकल्स। पार्ट जो रादर 6 हम 6 के ऊपर थे बेटा, कहाँ थे? सर 5 तक यस सर 5 कर लिया, अभी 6 हाँ, करना 6 के ऊपर। पार्ट जो 6 है हमारा, इट इज कंपोज ऑफ टोटल 14 आर्टिकल्स, 14 आर्टिकल्स हैं इसके, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स हैं टोटल 160 to 174, टोटल 14 आर्टिकल्स,
and these 14 articles are related to the finance, property and adjudication, process of adjudication, कि इसके ऊपर अगर प्रोविंस और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के दरमियान, ये लोअर कोर्ट्स और अपर कोर्ट्स के दरमियान अगर इश्यूज होते हैं तो उसको कैसे हल किए जाएंगे. चैप्टर 1 is related to the finance and it is having 5 articles, 160 to 165. Chapter 2 of part 6 is having total 5 articles. Yeah, that is related to the audit and borrowing. के central government can get loans from the international financial institutions or not, whether it is required to have the sovereign guarantee or not, and how provincial governments they would be borrowing from the central government and the ways they would be giving back जो सारे के सारे पैसे को कैसे देंगे. और उसके बाद जो chapter 3 of part 6 is related to the total 3 articles, 172, 173 and 174, only 3. Also constitution talks about the liability, suits and contracts जो इसके अंदर हैं प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान. अब अगला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. जुडिशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और इसके 175 टू 212 आर्टिकल्स. टोटल कितने आर्टिकल्स बन गए इनके? 37 आर्टिकल्स जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान. तो इसके टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स. पार्ट 7 इज हैविंग टोटल 4 चैप्टर्स. इसके 4 चैप्टर्स हैं और देयर आर टोटल 37 आर्टिकल्स रिलेटेड टू द जुडिशियल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. चैप्टर 1 इज हैविंग जस्ट 1 आर्टिकल. और आप लोगों ने 21st अमेंडमेंट पढ़ी थी आप लोगों ने मुझसे कि नहीं पढ़ी थी? पाकिस्तान स्टडी. हाँ, पाकिस्तान स्टडी में जो आर्टिकल 175 है जिसके ऊपर 21st अमेंडमेंट जो इसको इम्यून करती है, तो जो चैप्टर 1 है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 175, यानी कि ये कहता है विद इन द डोमेन ऑफ पाकिस्तान जो भी केसेस होंगे क्रिमिनल नेचर के, सिविल नेचर के, दे विल नॉट बी सेंट टू द अदर कोर्ट्स बियॉन्ड योर बॉर्डर्स. उस बॉर्डर से बाहर नहीं. वो जो भी सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर का होता है they would be dealt through the existing judicial structure of Pakistan. अब उसकी हायरार्की है लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 175 सिंगल एक आर्टिकल है चैप्टर 1 में और इसके आगे क्लॉजेस हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, एनेक्सर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं. इतना लंबा ये आर्टिकल है और घोरक धंधा है, लेकिन ये इससे रिलेटेड है. चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 7 इज कंपोज ऑफ total 14 articles and these 14 articles are related to the working of Supreme Court of Pakistan. Supreme Court से related हैं. Chapter 2 of part 7 there are total 14 articles, article 176 to 191, and they are directly related to the working of Supreme Court, power of Supreme Court, obligations of Supreme Court, functions of Supreme Court. और उसके बाद देयर आर टोटल फर्दर जो हैं इनके 11 आर्टिकल्स आर देयर जो चैप्टर 3 के अंदर हैं दैट आर रिलेटेड टू द कंपोजिशन, फंक्शंस, रिस्पांसिबिलिटी एंड द जस्टिस प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं. चैप्टर 3 याद रखिएगा. चैप्टर 3 अच्छा एक याद रखिएगा ये अब इसके अंदर एक छोटी सी जबरदस्ती एक चीज डाली गई थी. उसको चैप्टर तो कंसीडर नहीं किया गया लेकिन उसको इसका जैली पॉइंट डिक्लेयर किया गया है जिसको चैप्टर 3A डिक्लेयर किया गया. 3A वैसे अगर कोई बंदा इसको कहे कि सिंस दैट इज रिलेटेड टू दी जो इसके टोटल एक ही आर्टिकल हैं लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 200 एंड आर्टिकल 203 203A to 203J, A B C D E F G H I J means within these articles there are further sub 11 articles that are related to the Federal Sharia Code. Federal Sharia Code से related हैं बच्चों, ये याद रखिएगा. इसको चैप्टर 3A कहा जाता है.
203A, और ये सिर्फ एक आर्टिकल पे बेस करता है, दैट इज आर्टिकल 203. लेकिन आर्टिकल 203 इज फर्दर डिवाइडेड फ्रॉम A to J, 11 फर्दर सब आर्टिकल्स आर देयर. उसके बाद चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा ये मैंने कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ए वगैरह कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ ए ही पे था और फिर जैली सबसेक्शन थे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में अल्फाबेट पूरी हो गई है आपकी, यानी A to Z गया है और फिर डबल ए, फिर AB, फिर AC, फिर AD, ये इस तरीके से चीजें डिस्कस की गई हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन. अल्लाह माफ करे, गोरखधंधा बनाया हुआ इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉम्प्लेक्स. अच्छा, और जो चैप्टर 4 है दैट इज रिलेटेड टू दी, ये जो जुडिशियल का जो स्ट्रक्चर है उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी कि नहीं होगी, हाउ दे वुड बी गेटिंग सम फंड्स फ्रॉम प्रोविंशियल अफेयर्स, सम फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो उनका जो स्ट्रक्चर है उनकी पावर्स क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट की पावर्स क्या हैं, हाई कोर्ट की पावर्स क्या हैं, कैन हाई कोर्ट की फेडरल टेरिटरी में इंटरफीन कर सकती है कि नहीं कर सकती, उसकी जो उसकी जो क्या कहते हैं लिमिट कितनी है, दैट आर रिलेटेड टू आर्टिकल 204 टू 212. 8 आर्टिकल्स हैं दैट आर जनरल प्रोविजंस ऑफ द एडजुडिकेशन. सो जो पार्ट 7 है, part 7 is further divided into 4 chapters, and chapter 4 is having 8 chapters, 8 articles, and these 8 articles are related to the general provisions of judicature and adjudications in Pakistan. मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, हाई कोर्ट्स की और सब हाई कोर्ट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी तक हमने स्ट्रक्चर पार्ट 7 तक देखा है, तो आपको क्या समझ लगा, ये जो सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये चीजों को इतनी ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, स्टिल वी आर रिवॉल्विंग इन लिबरथम, हम एक लिबरथम के अंदर घूमे हुए हैं, ये चल क्या रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, everything is written in detail, every provision is written in detail, still whenever the interpretations they are coming up from the different courts, most of the times they are new, never being interpreted by previous studies. ये क्या है, इतना कुछ एक्सप्लेन होने के बावजूद, तो ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये डिस्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करता है, ये सेंटर प्रोविंसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके दरमियान डिस्ट्रेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और वी आर मोर लॉ लवर, इसलिए हमने इसको इतना लंबा बनाया है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स सिंपल हमने, या हम वी पीपल आर वेरी इग्नोरेंट, हमें हर चीज लिखी चाहिए. क्या कहते हैं आप लोग? सर ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक ले मैन इसको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान इसको करना चाहे भी तो इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम. इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि एक आम इंसान जिसको, पाकिस्तान कोई भी सिटीजन जिसको एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपने राइट्स पता होने चाहिए, उसे नहीं पता होंगे, क्योंकि अगर वो खोल के पढ़ना चाहे भी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख के वो वैसे कहेगा कि लीव इट. तो इसका मतलब क्या, जानबूझ के रखा गया ताकि लोगों को पता ना चले? सर ये हो सकता है क्योंकि आप खुद देखेंगे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में कौन पढ़ेगा. हालांकि ये हर सिटीजन का एक ही फंडामेंटल राइट है कि एटलीस्ट उसको स्टेट ने जो भी राइट्स दिए हैं उसको उस चीज के बारे में अवेयरनेस हो, लेकिन अगर कोई सिटीजन उस अवेयरनेस को गेन करना भी चाहे तो आपको क्या लगता है वो इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स के अंदर जाके इन चीजों को देखेगा कि कहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट किया गया और कहाँ पे मुझे मेरे पे कोई पेनल्टी वगैरह आ सकती है, वो कभी भी नहीं करेगा. और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि लेमैन वगैरह के लिए ही, दूसरे भी जो आपके हाई लेवल पे एलीट के जो इश्यूज थे उनको भी कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये चीज की जा सकती है. और अगर ये इतना ही अगर ये यूजफुल था या इतना ही ये मेटिकुलस टाइप की चीज थी, तो फिर क्यों जब कोई डिसीजन आता है तो फिर हर दफा एक न्यू प्रेसिडेंट सेट होता है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते अगर ये इतना ही परफेक्ट है. गुड है, ये अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है. कोई और बंदा क्या कहेगा? सर बात ये कि जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो यूएस में मतलब सिर्फ 7-8 आर्टिकल मिला के, ठीक है सर, तो वो इतने हैं कि मतलब अगर किसी आम इंसान को अगर पाकिस्तान में उसको समझाने की कोशिश करूँ तो शायद उसको सारे समझ आ जाए और याद भी हो जाए.
अब पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है इस वक्त कितना लो है, 50% से नीचे है, वो हो सकता है उस वक्त 73 में 56 में पता नहीं कितना होगा। तो सर पहले तो समझ यही आ रहा है कि दो नियत का नहीं पता कि क्या नियत थी उनकी, ये नियत भी हो सकती है कि उनको ये कि किसी को समझ नहीं आया, ऐसा लिखेंगे कि किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि सर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही इस वक्त। हमें इसको समझने में जो है ना इसकी जैसे मोहनजोदाड़ो से वो जो नहीं निकाले होते इन्होंने वो पुराने टैक्स, हमें इस तरह को पढ़ना पड़ेगा कि क्या है उसके अंदर। दूसरी बात है सर, अगर इतना लंबा बनाते तो ये अगर कोई हमारी कौम होशियार होती, लिटरेट होती, तब अलग बात थी कि मतलब ताकि उनको समझ है ये लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए तो सर हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हुआ है गंदा, मतलब मजहब के बाद सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है। फजर हमारा कहता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है इसके ऊपर, बाकी आर्मी भी कहती है, हर कोई कहता है क्या, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सच कह रहा है। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे आइन में और हमें खुद नहीं पता कि आइन में क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि somehow हमें लगता है कि might be there is some intention, deliberate intention, जो deliberately the way the constitution is being made, not to allow every person who can go through it and can learn it out of it. और जब भी आप देखें पाकिस्तान की 72 years की हिस्ट्री के अंदर, whenever we usually face any extraordinary case in front of us, every time new interpretation is coming out of it because of this reason. So I believe believe not, I am getting this perception, very dominating perception ke might be we made it Herculean, complex, difficult thing intentionally हमने बना दिया। या इसका एक दूसरा अगर we are not going to reconcile with this point, तो दूसरा ये है कि we are not nation basically. A nation used to have their same culture, color, caste, creed, language, and religion. They used to have their trust-based relation with each other. So what we are having in our country, people, they are very distrusted towards each other. People are having their provinces, people, they are not having trust on each other. And because of this reason, every province which was smaller or larger, when it comes to a matter of their vested interest, in order to protect their vested interest, they have tried their level best to codify the constitution according to their perception. और इसी वजह से उन्होंने कहा कि who knows what lies in future, अभी इस चीज को क्लियर कर लेते हैं और ये हो जाए। और ये जो when I used to talk about the anomalies must be something के जिनके ऊपर we demand more research, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। तो ये उसके बावजूद प्रोविंसेस के ऊपर बड़ा फाइनेंशियल अफेयर्स का मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि दे आर रिटन वेरी एलेबोरेटली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के व्हाट वुड द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रोविंसेस, व्हाट वुड द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टिल 70% resources of the provinces they are being looted and not 10 or 20% they are given back to the provinces. तो ये क्या है? कौन ना कोई इसको पढ़े, ना कोई इसको एलेबोरेट करे, ना कोई चीजें इसको देखे। और ये इंटेंशनल डेलिब्रेट एफर्ट हमारी लगती हैं जिन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। और याद रखिएगा, जितना आसान कानून है उतनी किसी भी कौम की, जितना कानून आसान होता है उतनी उस कौम की तरक्की याफ्ता होने की मिसाल होती है। और जितना लॉ कॉम्प्लेक्स होता है उतना इग्नोरेंस, रस्टिक बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। ये एक मुस्तमिल असूल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 280 आर्टिकल्स, और अभी जो मैंने आर्टिकल शरिया कोड का मैंने आपको बताया जो है आर्टिकल 3A, जो चैप्टर 3A है, इज जस्ट कंपोज ऑफ वन आर्टिकल। 203 आर्टिकल है शरिया कोड से रिलेटेड, लेकिन इट इज फर्दर बीइंग एक्सप्लेन्ड इन एनेक्चर A to J। 11 आर्टिकल्स फर्दर आर रिटन ओवर देयर। ये क्या किया है यार, हमने क्या कर रहे हैं हम अपने मुल्क में? सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसके ऊपर रिसर्च करें ताकि लॉन्ग टाइम रिसर्च आपकी याद रहे, आपको पता हो जाए किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट के आपको कमांड आ जाए। कोई एक पार्ट उठा लें, उसको तिया पांचा एक करें और उसको समझे व्हाट लाइज इन इट, what is the contradiction between the theory and practice, what law says and what is being practiced। और मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये आपका राइट है। अगर आप कोई वकील नहीं ले सकते, आप एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरा ये राइट यूजर्फ हुआ है। आपको लॉयर करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस थिंग। व्हाट वी नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो नहीं है हमारे पास, क्या करें? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई एक पार्ट उठाएं, उसके ऊपर काम करें, उसकी अनामली निकालें,
उसकी अनामली निकाल के आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा कहता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज बीइंग डन इन रियलिटी। अब आगे चलते हैं पार्ट 8 के ऊपर। पार्ट 8 कोई बात करना चाह रहे हैं दोस्त? कोई बात करना चाह रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं बेटा। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स, बाकी आर्टिकल छोटे छोटे हैं इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपकी, ये बड़े बड़े हमने चीजें कर ली हैं। पार्ट जो 8 है, पार्ट 8 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स and there are total 13 articles in part 8. Chapter 1 is composed of 8 articles and chapter 2 is composed of 4 articles. There are total 13 articles. 13 articles हैं, तो 4 इसके article 5 और इसके 13 to 220 के 8 और 4 12। 13 कैसे बने फिर ये? अच्छा इनको चलो ये देखते हैं। So जो part 8 है is composed of 2 chapters and that is related to the election. So part 8 is related to election and there are 213 to 226, 13 और 14 ये जो articles हैं that are related to the election process. इसके अंदर आप लोगों ने 18th amendment में पढ़ा था the election process, the making of chief election commissioner, और उसके बाद इसकी जो membership है उसकी क्या अटानमी है, फाइनेंशियल अटानमी क्या है और उनकी जो गारंटी क्या है, सर्विसेज गारंटी, वो सारी इस चीज के अंदर। चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस, 4 प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशंस एंड द अपॉइंटमेंट एंड द वर्किंग फंक्शंस एंड पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये आर्टिकल 213 टू 221, ये कोई 18 के करीब बनते हैं, 8 के करीब बनते हैं आर्टिकल। और चैप्टर जो 2 है is related to the electoral laws and conduct of elections in provincial and central government. इसके ये जो चैप्टर 2 है the conduct of elections से related है, that is related to conduct of elections starting from 222 to 226, 222 से 226 तक हैं, right guys? तो ये इलेक्शन से चैप्टर 8 ये या जो पार्ट 8 है is related to the election process in Pakistan। और उसके बाद जो पार्ट 9 है दैट इज द इस्लामिक प्रोविजंस एंड और ये देयर आर टोटल 4 इस्लामिक प्रोविजंस पूरे मुल्क में। नॉट अ सिंगल लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, इस तरह की चीजों के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 227 से 231, 227 से 231 4 articles that are related to the Islamic provision, जो मैंने आपको मिसाल दी, not a single law can be made in our country which would be जो है against the spirit of Quran and Sunnah। और जो इसका कोई चैप्टर नहीं है। Part 9 is having no chapter, Part 10 is having no chapter and Part 10 is related to the emergency provisions and there are 5 articles, Article 232 to 237। कोई चैप्टर नहीं है पार्ट 10 का, बट इट इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजंस, emergency being imposed by the president, emergency being imposed by the governors, emergency being imposed by the central government in any provincial affairs, on the matter of law and order, on the matter of financial emergency, on the matter of national disaster, etc. etc. सारी चीजें इसके अंदर emergency provisions। there are 5 articles, notes, सब chapter जो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद पार्ट 11 जो है that is the process of amendment, और there are 2 articles process of amendment। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो याद रखिएगा, ये मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अमेंड हो सकता है, याद रखिएगा। 1973 constitution cannot be changed, replaced with another constitution। Article 6 एक और Article 238 to 39 they are directly related to the amendment process। Our constitution cannot be changed with another constitution but could be amended। और आपको पता है उसका प्रोसेस क्या, 2/3 majority from the lower house, 2/3 majority from the upper house, then the approval of your president। this is how amendment होती है। लेकिन when it comes a matter of provincial legislation, अगर इसके अंदर भी लिखा हुआ है
अगर के सेंट्रल गवर्नमेंट इज विलिंग टू change the boundaries of some provincial government, central government is willing to bring change in the geography of any province, then 2/3 majority is required from the provincial legislature as well, कि वो इस बात को मानती है कि नहीं मानती। इस वजह से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ये जो नए प्रोविंसेस नहीं बन पा रहे, तो ये उस चीज के अंदर बताया गया है कि इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन द ज्योग्राफी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोविंस, तो उसके अंदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू वेट फॉर द 2/3 अप्रूवल फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज वेल, एंड दैट इज रिलेटेड टू द पार्ट 11, यानी कि हाउ टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले बताया कि चेंज इज नॉट पॉसिबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इज पॉसिबल, ये याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट इज रिलेटेड टू दी पार्ट 12, जिसको कहते हैं मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं 240 से 280 तक। अब वो उसके फर्दर चैप्टर मिसलेनियस के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, देयर आर 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स हैं। सर्विसेज आर्टिकल 240 से 242 तक सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान की 3 सर्विसेज होंगी, आर्मी की, फौज, नेवी की, एयरफोर्स की, उनको एक्सप्लेन करता है। फिर आर्म्ड फोर्सेस को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है 243 से 245 चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 1 के 2 आर्टिकल, चैप्टर 2 के 2 आर्टिकल, राइट, टोटल कितने 40 आर्टिकल्स। चैप्टर 3 के ट्राइबल एरिया से रिलेटेड था, ये ट्राइबल एरिया से इसको अमेंड किया गया, ये याद रखिएगा चैप्टर को, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है 246 से 247। उसके बाद जनरल आर्टिकल्स हैं, जनरल आर्टिकल इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनकी ऑटोनॉमी, इनकी वर्किंग ऑपरेशनलाइजेशन, ये जनरल है, दैट आर द पार्ट ऑफ चैप्टर 4, और इसके 248 से 259 आर्टिकल्स हैं, ये याद रखना है आपने। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 260 से लेकर 264 तक। फिर चैप्टर 6 जो रिलेटेड है 265 से 266, टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील, किसी भी जो नए ओहदे क्रिएट करने हैं और किसी को कमीशन देना है, किसी आर्ट पार्ट को रिपील करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद ट्रांजिशनल है जो 13 आर्टिकल हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7, और ये उनसे रिलेटेड हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया जो सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 12 है, एंड इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 40 आर्टिकल्स, एंड चैप्टर 12 जो पार्ट 12 है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया देयर वर टोटल 7 शेड्यूल्स। 18th अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल 6 दैट वाज रिलेटेड टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और शेड्यूल 7 that were related to the how to bring amendment in constitution, and the concurrent list से related है। इन दोनों को omit कर दिया गया after 17th amendment। Now there are total 5 schedules in our constitution। constitution के अंदर ये जो शेड्यूल बनाने की क्या जरूरत पेश आई थी, क्वेश्चन आता है भाई हर चीज तो चैप्टर में दे दिए, शेड्यूल क्यों बनाई गई है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, होते हैं हर कौम को से, कुछ लॉज ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट करते हैं आर्टिकल 8(1) एंड 8(2) को, वो अब आप पढ़ेंगे। फिर शेड्यूल 2 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्लियामेंटरी में कोई और स्ट्रक्चर लेकर आ जाते हैं, प्रेसिडेंशियल में कोई और लेकर आ जाते हैं, उससे रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड जो वो ओथ ऑफ ऑफिस है, यानी कि जो सर्विसेज के लोग हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो अपने अपने जो सिविल सर्वेंट हैं, दे टेक ओथ ऑफ देयर। शेड्यूल जो 4 है दैट इज लेजिस्लेटिव लिस्ट, वो जो ऊपर डिस्कस किया गया था, उन लिस्ट को फर्दर शेड्यूल्स के अंदर डिटेल में सब्जेक्ट वाइज एनामोरेट किया गया है, ये शेड्यूल 4 के अंदर। शेड्यूल जो 5 है रेन्यूमरेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस से रिलेटेड है। याद रखिएगा ये जो 19 अमेंडमेंट था और 20th अमेंडमेंट के अंदर दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ जजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जजेस, रेन्यूमरेशन ऑफ जजेस। तो जो शेड्यूल 5 है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सर्विसेज ऑफ जजेस, और जो शेड्यूल 6 है वो मैंने आपको बताया ओमिट हो चुका हुआ है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है टाइम काफी हो गया, मैं और भी चीजें आपको बताना चाह रहा था, स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे
लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, मैंने अगली क्लास में आप लोगों से एक ओरल क्विज आई एम गोइंग टू टेक, एक ओरल क्विज लेना है, इसके ऊपर कॉन्सेंट पे दे दें, अगली क्लास में देना है या उससे अगली क्लास में देना है। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर आई नीड टू हैव फ्रॉम यू गाइज, मैंने इधर ही पूछना है। और मैंने जिस बंदे से क्वेश्चन करना है मैंने उसको कहना है जरा कैम ऑन करो ना, मेरे सामने देखो, जरा मेरे सामने देखो, तो वो फिर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा और वो मुझे जवाब देगा। ये बात अच्छी है कि बुरी है? ठीक है सर जो बंदा शक्ल दिखाने की हालत में ना वो क्या करे? कोई बात नहीं यार, देखो वो माँ अपने बच्चे को कहती है कि पुत्रा दे मुंह तो ही होंगे ने, खैर है कोई गल नहीं, जैसा भी शक्ल होगी, जैसे मेरा है। आपको पता है ये बार्बर की शॉप्स बंद है, आई गॉट माई हेयर्स मोर लेंथी देन माई हेयर्स, लंबे बाल हो गए मेरे, कानों से नीचे आ रहे हैं पीछे। मुझे अपना वो 12 years याद आ गया कि व्हेन आई यूज्ड टू हैव माई लॉन्ग हेयर, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बियर्ड बड़ी हुई है तो हाँ। वो तो सर आप मायना सर यहाँ पे ऐसा करिए, फिर प्राइवेट हमें कॉल कर दे सर, यहाँ पर तो ना पूछना, यहाँ पर सब कुछ देखेंगे।